A very pleasant morning to one and all present here. This is Abhilasha Nahata from Leal Public School. So, kids, today we all are going to start our new chapter from your history textbook. The name of the chapter is Traders, Kings, and Pilgrims. So, first of all, what do you mean by the term traders? Traders are the person traders are the person who deal with the goods, who buys and sells goods, etc. Kings, you all know, a ruler, and the pilgrims, a traveler. Okay, so basically we will talk about all these things, the interconnection between all these things in this chapter. So you already talked about Mauryans, and you know how Mauryans were succeeded by a number of native and foreign rulers. So basically in this chapter we will speak about them, how they succeeded different types of foreign rulers, and we will discuss about some of the kingdoms, and we will discuss about some of the things they deal about, the silk routes, the traveler, etc. Okay, so now Jagini at the market. Just look at this box, Jagini at the market. Jagini looked forward to the fair in the village. This is the picture of Jagini. She looked forward to the fair in the village. Fair, यहाँ पे fair का मतलब क्या है? It means एक मेला. ठीक है, एक मेले में जाते हैं ना, जैसे फेयर लगता है, ट्रेड फेयर लगता है, वैसे ही जागिनी भी जो है, जो गांव में एक मेला लगा है वहां देखने गई. वहां उस मेले को घूमने गई. She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral designs, and clockwork toys, all of which came from the city. Now she loved to see and touch the pots and pans. जितने भी pots थे, utensils थे, जो बहुत ही steel से बने हुए थे, उसे देख के उसे टच करना, उसे देखना उसे बहुत पसंद आया. उसने बहुत bright colors के प्लास्टिक के buckets देखे, फ्लोरल डिजाइन मतलब फूल के डिजाइन से बने हुए कपड़े देखे उसने, क्लॉकवर्क टॉयज जो स्प्रिंग और बैटरी से जो टॉयज चलते हैं, उन टॉयज को देखा. और ये सारी की सारी चीजें कहां से आई थी? ये सिटी से आई थी. The men who spread out their wares came in buses and trucks and went back at the end of the day. Why were they always on the move? She wondered. Her mother explained that they were traders, people who bought things where they were made and sold them elsewhere. नाउ जो भी जितने भी आदमी थे जो ये सारा फेयर लगा रहे थे, जो पॉट्स को पैन्स को बेच रहे थे, क्लोथ्स बेच रहे थे, प्लास्टिक बकेट्स बेच रहे थे, क्लॉकवर्क टॉयज बेच रहे थे, तो उसने देखा कि ये सारी चीजें जो है बसेस में आती है, ट्रक्स में आती है सुबह सुबह, और जब दिन खत्म होने वाला होता है, फेयर खत्म होने वाला होता है, तब वो वापस से चले जाते हैं. दे वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे. नाउ शी वंडर्ड लाइक व्हाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव. हमेशा मूव क्यों करते रहते हैं वो? सो उसकी मदर ने उसे एक्सप्लेन किया कि ऐसे लोग जो थिंग्स, जहां पे भी ये गुड्स बनते हैं, जैसे फैक्ट्रीज में बनते हैं, तो फैक्ट्रीज से इन गुड्स को परचेज करते हैं और कहीं और जाके इन्हें सोल्ड आउट मतलब इन्हें सेल कर देते हैं. Okay, so now how to find out about trade and traders. Now you read about the northern black polished ware in chapter 8. This fine pottery, black polished ware, black polished पॉटरी, पॉट के लिए जो पॉट के लिए ये टर्म यूज किया गया है, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ब्लैक कलर की पॉलिश से ना, एक आप जब पहले के टाइम पे क्या किया जाते थे, घड़े बनाए जाते थे. सो दिस फाइन पॉटरी, स्पेशली bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. तो ये इतनी अच्छी और इतनी मतलब अच्छे से बनाए हुए पॉट्स और स्पेशली प्लेट्स और बोल्स जो
प्याले जो कटोरियां होती है, जो प्याले होते हैं, उनके लिए ये टर्म यूज किया गया है। तो ये सारी चीजें इतनी सुंदर और इतनी अच्छे से बनाई गई है। तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। हमारे इंडिया में सब कॉन्टिनेंट इंडिया के लिए यूज किया गया है। इंडिया इज नोन एज अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज इट separate from Himalayas from the northern side, and from the three sides it is separated from the rest of the world from the seas and ocean. Indian Ocean, Arabian Sea और Bay of Bengal से ये rest of the world से क्या होते हैं, separate होते हैं। और ऊपर से जब हम northern side देखते हैं, northern side में हिमालय से जो है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सेपरेट होता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया में बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में, मतलब जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है ना, जो हिस्ट्री की खोज करता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन साइट्स। तो जहाँ पे हमें हिस्ट्री के एविडेंसेस मिलते हैं, विटनेस मिलते हैं कि इतने साल पुरानी ये चीजें हैं, ये सारी चीजें जहां से भी मिलती हैं उनको आर्कियोलॉजिकल साइट्स बोलते हैं। तो हमें बहुत सारे ऐसे बोल्स, बहुत सारे हमें ऐसे जो प्लेट्स हैं, ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल साइट से मिली है। सो हाउ डू यू थिंक इट रीच्ड दीज प्लेसेस? Traders may have carried them from the places where they were made to sell them at other places. So ऑब्वियसली जो अब जगिनी ने देखा कि जब फेयर लगा था तो बहुत सारे ट्रेडर्स आ रहे थे उसके एक विलेज में और अलग अलग जगह से सामान लेकर आ रहे थे और उन्हें बेच रहे थे। तो ये सारी जो चीजें हैं, पहले के टाइम पे भी क्या होता था, ट्रेडर्स जो बिजनेसमैन होते थे, जो गुड्स को बाय और सेल करते थे, वो भी क्या है, दूसरी प्लेसेस से गुड्स को लेकर आते थे और उन्हें कहीं और सेल आउट करते थे। South India was famous for gold, spices, especially pepper and precious stones. South India, present day South India, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो प्रेजेंट डे साउथ इंडिया है वो किसके लिए फेमस थी? इट वाज फेमस फॉर गोल्ड, सोने के लिए। स्पाइसेस, मसाले होते हैं ना, अलग अलग मसाले होते हैं, जैसे मिर्ची हो गई, धनिया हो गया, आपका इलायची हो गई, ये सारे आपके गरम, इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, ये सारे आपके मसालों में आते हैं। तो स्पाइसेस हो गया, स्पेशली पेपर क्या है? पेपर, काली मिर्च को इंग्लिश में बोलते हैं पेपर। तो ये सारी चीजों के लिए साउथ इंडिया जो था बहुत ज्यादा फेमस था। स्पेशली प्रेशियस स्टोन्स, जैसे डायमंड्स हो गए, अलग अलग जेम्स हो गए, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए साउथ इंडिया बहुत ज्यादा फेमस था। Pepper was particularly valued in the Roman Empire, so much that it was known as black gold. In Rome, in Roman Empire, pepper बहुत ज्यादा वैल्यू करता था। पेपर के जो एट्रीब्यूट्स थे, पेपर के जो बेनिफिट्स थे, बहुत ज्यादा है। तो रोमन एम्पायर में इसे काफी ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता था और इसलिए रोमन एम्पायर में ब्लैक पेपर को व्हाट दे नोन एज इट, ब्लैक पेपर वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। In present day, petroleum is considered as black gold, but at that time in Roman Empire, black pepper was known as black gold. You might have seen, घर पे देखा होगा ना, काली मिर्च कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है ना, छोटी छोटी। तो उस चीज को इसलिए उन्होंने ब्लैक गोल्ड कंसिडर किया है। गोल्ड क्यों बोला? गोल्ड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है, तो इसलिए गोल्ड का नेम दिया है कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। सो ट्रेडर्स कैरिड मेनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स across the sea and by land in caravans. There must have been quite a lot of trade, as many Roman gold coins have been found in South India. So traders, what traders did? Traders carried many of these types of goods like pepper, gold, precious stones. They carry these goods टू रोम में लेके जाते थे। कहाँ, कैसे लेके जाते थे? शिप्स के थ्रू, और शिप्स के थ्रू हो गया, और बाय लैंड में कैरावंस के थ्रू। कैरावंस मतलब कि आपके
ट्रक समझ लीजिए, ठीक है। कैरावन में वैसे आपकी सारी बेसिक फैसिलिटीज होती है, आप जिसमें काफी टाइम अपना जो है स्पेंड कर सकते हो। इट इज लाइक अ बस होम, ठीक है, बस होम मतलब कि वो मूव भी कर सकते हैं और उसमें घर के जैसे सारी सुविधाएं भी होती है, सारे आपके आपके पास बेनिफिट्स होते हैं। ओके, तो लैंड के थ्रू कैरावन्स में लेके जाते थे, शिप्स के थ्रू जो है रोम में लेके जाते थे। और ये हमें कैसे पता चला, ये हम अंदाज लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे रोमन गोल्ड जो है साउथ इंडिया में मिले हैं, हमें रोमन गोल्ड कॉइन्स काफी मिले हैं साउथ इंडिया में। ओके, so now can you think of how and why these reached India? अब कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड व्हाई दीज रीच्ड इंडिया? अब रोमन गोल्ड कॉइन्स कैसे पहुंचे होंगे? तो ऑब्वियसली ट्रेड करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं तो या तो बार्टर सिस्टम होता है, या तो आप गुड्स को क्या करते हो, एक्सचेंज कर लेते हो, या फिर आप कोई करेंसी यूज करते हो, या फिर गोल्ड कॉइन्स यूज करते हो, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, गुड्स को आपस में एक्सचेंज करते हो। तो इंडिया में ये सारी चीजें जो है आपके जो गोल्ड कॉइन्स वगैरह मिले, क्योंकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो और यहाँ पर जो मिनरल डिपॉजिट्स है वो काफी वैल्यूएबल है। A poem about trade. Now there is a little poem about trade. Trade के बारे में एक छोटी सी कविता है। We can find evidence of trade in the संगम poem. संगम लिटरेचर जो संगम लिटरेचर जो है आपका तमिल अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन है, आज से 2300 साल पहले लिखा गया है। तो संगम पोम्स में हमें इसके कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। एविडेंसेस का मतलब सबूत मिलते हैं। Here is one which described the goods brought into Puhar, an important port on the east coast. अब ईस्ट कोस्ट में, साउथ ईस्ट कोस्ट में पुहार एक पोर्ट है, मतलब जहां से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं शिप्स के थ्रू, तो वो जगह जो होती है पोर्ट कहलाती है। तो पुहार गुड्स को डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे पुहार में गुड्स को जो है लेके जाया करते थे। Here are brought swift prancing horses by sea in ships, bales of black peppers in carts, gems and gold born in the Himalayas, sandalwood born in the western hills, the pearls of the southern seas and corals from the eastern oceans, the yield of the Ganga and the crops from the Kaveri, foodstuffs from Sri Lanka, pottery from Myanmar, and other rare and rich imports. Now जो ये पोम है ये क्या बता रही है कि swift prancing horses. Now what is the meaning of prancing? Prancing means हाउस के लिए यहाँ पे यूज किया गया है कि हॉर्स के लिए यूज किया गया है कि कैसे हॉर्स जो है हाई स्पीड से हॉर्सेस को लेके जाया करते थे, और शिप्स तक हॉर्सेस के थ्रू हम क्या है सामान जो है गुड्स जो है वो पहुंचाया करते थे। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, बेल्स मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब कि जो ब्लैक पेपर की पूरी जो सैक्स होती थी, जो गांठें बनी हुई होती थी ना, उनके लिए यूज किया गया है कि जो ब्लैक पेपर है उनको बुलक कार्ट्स में या कार्ट्स में लेके जाया करते थे। हिमालय से जो गोल्ड और जेम्स एंड गोल्ड बॉर्न इन द हिमालयस, हिमालयस में जेम्स और गोल्ड हिमालय से आया करते थे। वेस्टर्न हिल्स से हमें सैंडलवुड चंदन मिलता है, और सदर्न सीज से हमें मोतियां मिलती हैं, द पर्ल्स ऑफ द सदर्न सीज, एंड द कोरल्स फ्रॉम द ईस्टर्न ओशियन। कोरल्स भी जो है एक जेम्स के लिए यूज किया गया है। वैसे ये एक मरीन एनिमल है, पॉलिप्स का जो स्केलेटन होता है उसके लिए कोरल्स यूज किया जाता है। तो कोरल्स, ईस्टर्न ओशियन से हमें कोरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। जो गंगा और कावेरी की जो यील्ड है, क्रॉप्स है, प्रोडक्शन है, वो हमें गंगा के पास की जमीन से मिलता है और कावेरी के पास की जमीन से मिलता है। हमें बहुत सारी क्रॉप्स मिलती है, बहुत सारे अलग अलग फूड स्टफ्स हमें श्रीलंका से मिलते हैं, म्यांमार से हमें अलग अलग तरीके की बहुत ही फाइन पॉटरी हमें देखने को मिलती है, एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स। और भी
और भी बहुत रेयर और रिच इंपोर्ट्स जो है अलग अलग जगह से हम मंगवाते हैं, ठीक है। नाउ traders explored several sea routes. Some of these followed the coasts. There were other across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the sea more quickly. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon. And sturdy ships had to be built for these long journeys. Now, traders, ये जो बिजनेसमैन है जो गुड्स से डील कर रहे हैं, ये अलग अलग सी रूट्स, वर्ल्ड के जो ट्रेडर्स हैं अलग अलग सी रूट्स को एक्सप्लोर करते हैं कि हम कौन सा सी रूट जो है ले सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग जो कोस्ट हैं वो वहां पे जाके सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, इवन कुछ जो है कोस्ट को भी फॉलो करते हैं, एंड इवन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जहाँ पे सदर्न आपका जो विंड्स की मूवमेंट होती है वहां पे साउथ वेस्ट मॉनसून होता है. इन योर फर्दर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट साउथ वेस्ट मॉनसून, मॉनसून विंड्स क्या होता है, यू विल गेट टू नो कि जो विंड्स होती है आपके साउथ से वेस्ट के साइड में आती है, ठीक है. तो इन इंडिया वी हैव मॉनसून विंड्स, जो मई से आपके सितंबर तक जो विंड्स चलती है वो साउथ वेस्ट, साउथ से आपके वेस्ट तक जो है आपकी विंड आती है. ओके, सो सेलर्स जो है मॉनसून विंड्स का बहुत ज्यादा मतलब एडवांटेज लेते हैं वो, जिससे कि अब तूफान आएगा या फिर हवाएं तेज होगी तो वो शिप्स ऑब्वियसली जो है जल्दी पहुंच पाएगी ना. सो जब भी उनको वेस्टर्न कोस्ट जो सब कॉन्टिनेंट ईस्ट अफ्रीका से या अरेबिया से वो क्या करते थे, मॉनसून के टाइम पे जो है वो शिप्स लेके जाते थे, वो सेल करते थे, और वो इतने स्ट्रॉन्ग शिप्स बनाते थे जिससे कि वो लॉन्ग जर्नीज जो है इजीली कर पाए. ओके, now next topic is new kingdoms along the coast. Now first of all, what do you mean by the term coast? Coast means the area near the ocean or sea is known as coast. जो coast मतलब कि जो समुद्र के पास का एरिया होता है उसको हम coast बोलते हैं, ठीक है. Like the southern half of the subcontinent is marked by a long coastline and with hills, plateaus and river valleys. Now, as you all know, you all have seen the map of India. Suppose this is the map of India. This is the southern part of India. And you all know, here we have Arabian Sea, here we have Bay of Bengal, and in southern part we have Indian Ocean. You all know about it very well. So, southern half of the subcontinent, हमारा जो अगर हम southern half की बात करें, subcontinent के southern half की बात करें, तो ये पूरा सदर्न हाफ जो है यहाँ पे जो है बहुत ही लॉन्ग कोस्ट लाइन है, मतलब ये पूरा एरिया समुद्र के किनारे का एरिया है, ठीक है. सो इट इज मार्क्ड बाय ए लॉन्ग कोस्ट लाइन विद हिल्स. बहुत सारी यहाँ पे वेस्टर्न घाट से तो बहुत सारी हमें हिल्स देखने को मिलते हैं. ये पूरा आपका डेक्कन प्लेटू है. ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन आवर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक ना. प्लेटूज है, रिवर वैलीज हैं. Amongst the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile, और southernmost जो southern areas है वहां पे जो कावेरी रिवर है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है, मतलब वहां की जो लैंड है बहुत फर्टाइल है. हमें जो है वहां पे वहां का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो काफी अच्छा है. Chiefs and kings who controlled the river valleys and the coasts become rich and powerful. So those जो सरदार होते थे, जो मिनिस्टर्स होते थे या किंग्स होते थे, जो इन रिवर वैलीज पे जिनका कंट्रोल होता था या जिनका कोस्ट लाइंस पे कंट्रोल होता था, वो काफी रिच और पावरफुल हुआ करते थे क्योंकि उनको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिलते थे यहाँ से. संगम पोम्स मेंशन द मूवेंदर, ठीक है. मूवेंदर, व्हाट इज मूवेंदर? इट मींस 3 चीफ्स. मूवेंदर का मतलब होता है 3 चीफ्स को बोला जाता है मूवेंदर. दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ्स यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज, चोलास, चेरास एंड पांड्यास.
Now, Movinder is a term, it is a Tamil term and it means three chiefs, and this term is used for the heads of three ruling families. थ्री रूलिंग फैमिलीज के लिए जो है ये वर्ड आपका यूज किया गया है, चोलास, चेरास एंड Pandyas. Cholas, Cheras and Pandyas. Now, if you look at the map of India, if you will look at the map of India, just give me a second. Let me show you the map of India. I think it is given in your book. No, it's not given here. Okay, just a minute. Suppose, let me draw that for you. This is the southern part of India. Okay. Now this area, or you can say Tamil Nadu wala area, this is Cholas. ठीक है, ये यहाँ तक का जो है ये वाला जो एरिया चोलास है, ये वाला जो एरिया है ये पांड्यास है, और ये वाला जो एरिया है इसको हम चेरास बोलते हैं. So these are the three heads of the ruling families, three chiefs of the ruling families, Cholas, Cheras and Pandyas, जिसके लिए term use किया गया है Movinder. Okay, who became powerful in South India around 2300 years ago. And these three chiefs, Cholas, Cheras and Pandyas, they became powerful in South India around 2300 years ago. आज से 2300 साल पहले बहुत ज्यादा पावरफुल जो थे ये वाले, बहुत ज्यादा पावरफुल थे ये कौन, ये वाले जो रूलर्स थे, Cholas, Cheras and Pandyas. If you look at the map, if you look at the map 7 given on page number 105, you will get to know about Cholas, Cheras and Pandyas. I don't have that picture with me right now. I will show you tomorrow. Okay, कल दिखाती हूँ मैं आपको. Now, each of the three chiefs had two centers of power, one inland and one on the coast. Of these 6 cities, 2 were very important: Puhar or Kaveripattinam, the port of the Cholas, and the Madurai, the capital of the Pandyas. Now, each of the 3 chiefs, कौन से थे, Cholas, Cheras and Pandyas, और इन तीनों के पास जो थे 2 centers of power थे. एक था inland, मतलब लैंड के अंदर ही, और एक था कोस्ट, मतलब समुद्र के पास का एरिया, कोस्ट वाला एरिया. इसमें 6 सिटीज थे, जिसमें से 2 सिटीज जो थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और उन सिटीज का नाम क्या है, पुहार और कावेरीपत्तिनम. पुहार और कावेरीपट्टिनम जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था. द पोर्ट ऑफ द चोलास एंड द मदुराई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास. पुहार और कावेरीपट्टिनम, उसके बाद जो चोलास का पोर्ट था वो, और मदुराई पांड्यास की कैपिटल को, पांड्यास की जो कैपिटल थी वो मदुराई थी. The chiefs did not collect regular taxes. Instead, they demanded and received gifts from the people. Now, जो chiefs थे उनको कोई regular tax नहीं देना पड़ता था, but they demanded and received gifts from the people. उन्हें लोगों से ही जो है gifts मिलते थे. They also went on military expedition and collected tribute from neighboring areas. अब military expedition के लिए, military मतलब कि army को लेके वो दूसरे spaces पे जाते थे, दूसरे जगह पे भी जाते थे, जिससे क्या होता था, नेबरहुड में जर्नी करते थे, जिससे कि कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वहां से भी उनको क्या है, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे. They kept some of the wealth and distributed the rest amongst their supporters, including members of their families, soldiers and courts. Now, अब कुछ जो धन होता था, वेल्थ होता था, वो अपने पास रखते थे, और बाकी का जितना भी उनके पास वेल्थ आती थी वो अपने सपोर्टर्स को और अपनी फैमिली मेंबर्स को, सोल्जर्स को या पोएट्स को क्या करते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. Many poets whose composition are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, golds, horses, elephants, chariots and fine clothes. बहुत सारे जो पोएट्स हैं जिन्होंने संगम कलेक्शन को कंपोज किया है, संगम लिटरेचर के अंदर जो बहुत सारी पोम्स हैं, उसमें जो चीफ्स हैं उनको काफी प्रेज किया है. प्रेज करना मतलब उनको काफी, उन्होंने क्या किया है, उनकी तारीफ की है और बताया है कि
कैसे जो चीफ्स होते थे उनको बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स गिफ्ट करते थे। रिवॉर्ड करना मतलब कि उनको अवार्ड देना, गिफ्ट करना। तो उनको बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स देते थे, गोल्ड देते थे, हॉर्सेस हो गए, एलिफेंट्स हो गए, चैरियट्स हो गए, फाइन फाइन क्लोथ्स हो गए, ये सारी चीजें जो जरूरत की होती थी, ये सारी चीजें एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड उनको दिया करते थे। Around 200 years later, a dynasty known as Satavahanas became powerful in Western India. अब 2300 years पहले चोलास, चेरास और पांड्यास जो थे काफी पावरफुल थे, काफी जो थे वो इम्पोर्टेंट भी रहे हैं, काफी इम्पोर्टेंट चीफ्स रहे हैं। बट उसी के बाद 200 साल बाद, मतलब आज से 2100 साल पहले, 2100 अगो, ये एक डायनेस्टी आई थी सतवहनास, ठीक है, बहुत ही पावरफुल बन चुकी थी वो वेस्टर्न इंडिया में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवहनास, I will show you the map of that thing. Okay, the most important ruler of the Satavahanas was Gautami Putra Shri Satkarni. The most important ruler of the Satavahanas was गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी, जो वेस्टर्न इंडिया का जो ये बहुत ही सतवहनास का जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था, वो था सतवहनास एंड रूलर ऑफ सतवहनास, जिसका जो सतवहनास का रूलर कौन था? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो थे वहां के रूलर थे। We know about him from an inscription composed on behalf of his mother Gautami Balashri. हम उनके बारे में कैसे जानते हैं? हमें उनकी इंस्क्रिप्शन मिली है, मतलब दीवारों पे उनके बारे में लिखा हुआ गया, उनकी मदर ने जो है on behalf of his mother, उनके बारे में लिखा गया है। उनकी मदर का नाम है गौतमी बालाश्री। गौतमी श्री सतकर्णी की मदर का नेम है गौतमी बालाश्री, और उनके बिहाफ पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है उसके थ्रू हमें उनके बारे में जानने को मिलता है। He and other Satavahanas ruler were known as lords of Dakshinipatha. दक्षिणीपत्था, और सतवहनास के जितने भी रूलर्स थे उनको दक्षिणीपत्था का जो है भगवान माना गया है। क्या माना गया है? दक्षिणीपत्था का भगवान माना गया है। Literally, the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast. अब दक्षिणी पत्था का मतलब है कि आपका सदर्न इंडिया की बात की गई है, एक ऐसा रूट, एक ऐसा पाथ जो साउथ की ओर जाता है। तो यहाँ इसके लिए जो ये नेम यूज किया गया है, या पूरे साउथ रीजन के लिए यूज किया गया है। जितने भी ईस्टर्न कोस्ट थे, सदर्न कोस्ट थे और वेस्टर्न कोस्ट थे, उन सब पे जो है ये जो रूट है जो जाता था। सतवहनास के बारे में बात की है। ओके, नाउ why do you think he wanted to control the coast? Obviously, these coasts are like very profitable. We can reach to other part of the world with the help of these coasts. That's why these coasts are like very important for them, because it gave them so much power and बहुत ज्यादा rich resources जो है हम अपने जो import कर सकते हैं, और उसके बदले में हमें बहुत सारा गोल्ड कॉइन, ये सारी चीजें मिलती थी। तो इसलिए ये जो कोस्ट है, जितने भी राजा वगैरह होते थे वो कंट्रोल करना चाहते थे। ओके, सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। Thank you so much for joining the class, everyone. Go through the chapter, read the chapter till page number 93, and if you face any problem, do let me know. देखो, हमने चोलास, चेरास और पांड्यास की बात की थी, और इन तीनों चीफ्स के लिए जो टर्म यूज किया गया है वो टर्म यूज किया गया है मूवेंदर। मूवेंदर तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 चीफ्स। आज से 2300 साल पहले की जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी, कौन सी थी? पुहार और कावेरीपत्तनम। चोलास का जो पोर्ट था और पांड्यास का जो कैपिटल थी मदुराई, ये जो थी ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पुहार और कावेरीपट्टनम, और यू कैन से मदुराई द कैपिटल ऑफ पांड्यास। ये दो इंपॉर्टेंट सिटीज थी। उसके बाद सतवहनास आए, जिसके जो रूलर थे वो कौन थे? सतवहनास के जो पावरफुल रूलर थे वो थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, और उनके बारे में हमें गौतमी बालाश्री के इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलता है। और ये जो सतवहनास रूलर्स थे
है वो दक्षिणी पथ था, मतलब कि जो सदर्न रीजन है, सदर्न रीजन का जो पाथ है, वहां पे रूट है, उसके लॉर्ड्स माना करते थे, मतलब लोग उनको बहुत माना करते थे और उन्हें वहां पे जाने से कोई रोक नहीं पाता था, और इसलिए उन्हें वहां का लॉर्ड भी माना गया है। पूरे सदर्न रीजन के लिए दक्षिणी पत्था जो है नाम यूज किया गया है। ओके, so this is all about today class. Thank you, bye bye, take care.